So, good morning, everyone, and welcome back to today's Synergy Sphere session. My name is Charulata Wankhede, and today we are going to have a session on logistics and supply chain management. We usually have such sessions, right? But this is going to be a different experience because whenever someone who shares about this topic comes in, they comes with their hands-on experience as well, right? So on that note, before we begin with this session, I want to know how many of you are from C14 batch? Yes. Yes, it is a session for PGCM. It is a session for everyone for that matter, right? C14 से कौन कौन है? Okay. Harshvardhan, Sadik, Ganesh. I see a lot of people from C14. Ayushi, Soumya. Very nice. Okay, so we have many people from C14, right? C1 से भी लोग हैं. Okay. Okay, Mahesh. Mayur is there. Okay. C12. It's good to see that we have learners coming here from different batches, right? Okay. So why I asked you is because today's learner speaker, that is Mr. Ravi Prakash Singh, is from C14, right? So I wanted you all to connect with your classmate, and for those who are from previous batches, you should also know that this person is your junior, right? So that we all will be able to help each other. We all will be able to work hand in hand together, right? So yes. And usually I get a message, I get, in these sessions, I get a lot of like, मैम सेशन हिंदी में क्यों नहीं हो रहा है? मैम सेशन हिंदी में लीजिए प्लीज, राइट? स्पीकर को बोलिए हिंदी में बात करे. सो लीजिए, today's session is going to be in Hindi. We have with us Mr. Ravi Prakash, who will be delivering this session in Hindi, right? So on that note, whenever we hear about word logistics, most of us immediately think about truck deliveries, warehouse, and maybe that one package that we are waiting for, right? And usually, while thinking all of this, we don't know what is happening behind, right? Behind the successful delivery, an entire system of planning, coordination, technology, problem solving, and decision making that keeps industry and businesses working smoothly is also there, right? So, that experience, that to explore where and how it is happening, we are going to know about it from today's session because we are going to dive into that world. So, on today's session, it is going to be about logistics and supply chain management from domestic operations to cross border trade. And to guide us through this journey, with us, we have an experienced professional with 11 plus years of experience, our fellow classmate of MIT SD, Mr. Ravi Prakash Singh, right? Yes. Right. And what makes today's session even more special is it is not just theoretical learning, it is also be coming directly from the professional who has experience and exposure across border, right? So Mr. Ravi he is here with us. Like I said, हिंदी में सेशन होगा तो मैं काफी हिंदी में ही बात करूंगी इस बार, ठीक है? बट सेशन शुरू करने से पहले कुछ सवाल पूछ लेते हैं मिस्टर रवि से. यस. So, hello, Mr. Ravi. Good morning. Yes, ma'am. Good morning. Yes. So, before starting the session, मुझे ये जानना था कि आप आपके बारे में थोड़ा बता सकते हो, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बाकी की डिटेल्स भी हम जानना चाहेंगे. आपके फैमिली में कौन कौन है, आपने पढ़ाई कहाँ से की है? Yes, yes, yes. Of course, मैम. मेरा नाम रवि प्रकाश सिंह है. मुझे इस इंडस्ट्री में 11 प्लस वर्षों का अनुभव है. मैंने ओके. ग्राउंड ऑपरेशन से शुरुआत की थी. हम्म. धीरे धीरे एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को समझा. मेरा सफर चुनौतीपूर्ण था लेकिन बेशक रोमांचक रहा. जैसा मैंने सीखा कि कैसे सही समय पर सही सामान पहुंचाना किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है. करेक्ट. And now I'm going to our
एजुकेशनल बैकग्राउंड। मैंने हम्म। अपनी ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट की में पूरी की, अ, हम्म। जिसने मुझे बिजनेस और एनालिटिक की बेसिक समझ दी। लेकिन करेक्ट। जब मैंने असल दुनिया में काम करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में काफ़ी अंतर है। इसी वजह से मैंने अपनी स्किल को अपग्रेड करने और करियर में आगे बढ़ने का फैसला लिया। राइट। नाउ आई एम गोइंग टू ओके। आवर MIT SD के में छात्र होने के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। हम्म। MIT SD से PhD करना मेरे लिए एक गेम चैलेंजर साबित हो रहा है। ये। इसके कैरिकुलम ने मुझे नए जमाने की लॉजिस्टिक स्ट्रेटजीज जैसे डेटा एनालिटिक एंड सिस्टम मैनेजमेंट के को समझने में मदद मिली है। सबसे हम्म। अच्छी बात यह है कि वीकेंड पे जो मैं सीखता हूँ उसे मंडे को अपने ऑफिस में सीधा अप्लाई कर पाता हूँ। वाह। ओके। और मेरे करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब था जब मैंने एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को लाइव माइग्रेशन प्रोजेक्ट की लीड किया था। उस हम्म। समय पहली बार मुझे समझ आया कि छोटी सी गलती लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में गलती से पूरी बिजनेस के रेवेन्यू को प्रभावित कर सकता है। उस हम्म। सफल प्रोजेक्ट के बाद मेरा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया और वाह। मैं ओके। आगे बढ़ता गया। ओके। ग्रेट। ओके मैम। यस। पिछले 3-4 वर्षों से लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के उद्योग में जो ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, बदलाव देखने को मिला है, वो काफी रोमांचक रहा है। पिछले मैंने हम्म। क्या देखा, पिछले कुछ सालों में यह इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल चुकी है। पहला बदलाव मैंने यह देखा कि ई कॉमर्स तेजी से बढ़ना इसके क्विक डिलीवरी को हम्म। जरूरी बना दिया है। दूसरा है हरित लॉजिस्टिक, जहां कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट कम करने और इलेक्ट्रिक व्हील्स EV का इस्तेमाल करने में जोर दे रही है। आज तकनीकी ही इस इंडस्ट्री को चला रही है। AI और हम्म। मशीन लर्निंग की मदद से हम सटीक डिमांड कर पा रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंकिंग और रियल टाइम्स GPT ट्रैकिंग एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट फ्लीट ऑपरेशंस को पूरी तरह से पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बना दिया है। ओके। भारत में सबसे बड़ी नाइस। चुनौती हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट। आज की जो चुनौती है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में या लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में, सप्लाई चेन इंडस्ट्री में, यह भारत की एक हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हालांकि गति शक्ति और सरकारी पहलों को में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। Tier 1 और Tier 2 शहरों का लास्ट माइल डिलीवरी और कुशल जनशक्ति स्किल लेबर की कमी आज भी बड़ा चैलेंजेस दे रही है। ओके। सो आई थिंक थैंक यू सो मच मिस्टर रवि। जी मैम। आपने काफी चीजें हमें बताई है आपके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, राइट। जी। देखिए, बहुत बार क्या होता है, जैसे हमारे लर्नर्स भी सोच रहे होंगे कि ये सेशन या हमें जो पता चलने वाला है, राइट, जैसे मिस्टर रवि ने कहा कि भारत में जो चुनौतियां हम फेस कर रहे हैं, राइट, लॉजिस्टिक्स की जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए चीजें आ रही है, राइट, तो हम इस सेशन के थ्रू उसके बारे में जानने वाले हैं। अब एक मेरा रिक्वेस्ट है सारे लर्नर्स से, प्लीज नोट कि मिस्टर रवि भी आप ही की तरह आपके क्लासमेट है। वो कोई बहुत बड़े स्पीकर नहीं है। ही इज जस्ट अ पर्सन ट्राइंग टू लर्न एंड शेयर हिज नॉलेज थ्रू दिस सेशन, राइट। इस सेशन के थ्रू वो अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, उनका जो भी अब तक का सफर रहा है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं।
So I request everyone that we have to be kind, we have to be understanding, and we have to take all the knowledge, all the experience through his lens that we can get through this session. Okay. So I hope we all have understood that. Thank you, Tejal, for informing, saying yes, yes. So on that note, without any further ado, thank you so much, Mr. Ravi, for sharing your experience and insight with all of us. And I'm sure कि हमारे learners को already काफी curious महसूस हो रहा होगा, excited होंगे इस session में dive करने के लिए, right? सो हम इस पे फोकस करते हैं, हम जानने पे फोकस करते हैं कि मिस्टर रवि का क्या एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है उनके पास। एंड ऑन दैट नोट, विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं मिस्टर रवि से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आज का सेशन शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू आवर टॉपिक टुडे, and I want to share our PPT also. Okay, so please wait. यस, तो इन द मीनवाइल, जैसा पहले भी हमारा होता है, मिस्टर रवि जब तक उनका पीपीटी शेयर करते हैं तब तक मैं बता दूं, अटेंडेंस एंड में होगा सेशन के। तो आपको रुकना पड़ेगा, सेशन पूरा सुनना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये सेशन आप ही के लिए डिजाइन हुआ है। इसके अलावा हम यस, बीच में एक बार रुकेंगे, ऐसे करके हम 2 बार ब्रेक्स लेंगे जिसमें हम सवाल जवाब करेंगे। आप मिस्टर रवि से डायरेक्टली पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है आपका। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी ड्यूरिंग द सेशन, एंड ऑफ कोर्स वी विल बी लॉन्चिंग द पोल विच यू आर एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड। सो यस, yes, Mr. Ravi. If at all you need any help, let us know. Okay. Yes, ma'am. Okay. तब तक मैं सिनर्जी स्फीयर के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ जब तक मिस्टर रवि का पीपीटी शुरू होता है। सो जरूर जरूर। सिनर्जी स्फीयर इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम इनकी तरह, नमस्कार मिस्टर सुशील, यस, सो इन्हीं की तरह आप जो क्लासमेट्स हैं आपके, राइट? सो जैसे आज मिस्टर रवि हमारे साथ आए हैं, वैसे हमारे एलुमनाइज भी आते हैं, और वैसे ही आप लोग भी आ सकते हो। यू कैन ऑल्सो कम, यू कैन ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस, योर नॉलेज, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज exclusively for our learners. So like we say, by the learners, for the learners, right? आप यहाँ आइए, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, उन्हें भी बताइए कि कैसे इंडस्ट्री में काम होता है, और हमें क्या क्या, और हम क्या सीख सकते हैं, या और हम क्या कर सकते हैं आगे, राइट? सो यस, एंड में मैं फॉर्म शेयर करूंगी, आप उस टाइम पे डेफिनेटली उस फॉर्म में अपना नाम और सारी डिटेल्स भर सकते हो, सो दैट यू कैन ऑल्सो बी अ स्पीकर जस्ट लाइक मिस्टर रवि। ओके, मैम एक्चुअली ये पीपीटी हमारी आ नहीं पा रही डिस्प्ले पे। सॉरी, आया, थैंक यू। यस, इट इज ऑन डिस्प्ले। ओके, नाउ विजुअल। यस, इट इज विजिबल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्लोबल लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक ऑपरेशन का पार्ट होता है, जो कि बहुत ही अच्छा पार्ट है ये, और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट इज द लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट? यस, एनीबडी? यू कैन रेज योर हैंड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गो अहेड मिस्टर रवि। चलिए, ओके। तो हम आपको बताना चाहते हैं Yes, कि Mr. Shaurendra has replied, and yes, Mr. Rajendra. सर मटेरियल मैनेजमेंट सॉरी, मटेरियल मैनेजमेंट सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट मींस
मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल डिलीवरी, करेक्ट, मटेरियल परचेस, मटेरियल प्रोक्योरमेंट। वेरी गुड, थैंक यू सर। Yes. गुड। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि लॉजिस्टिक का जो काम है, बेसिक मतलब मैं एकदम छोटे शब्द में बताऊंगा आप लोगों को। एक जगह से सामान को दूसरी जगह पहुंचाना, ये हमारा लॉजिस्टिक का काम है, लॉजिस्टिक करती है। एंड सप्लाई चेन क्या करता है कि बनने से लेके मटेरियल कस्टमर को पहुंचाने तक का काम सप्लाई चेन का होता है। सप्लाई चेन का एक छोटा सा हिस्सा लॉजिस्टिक है, जिसे हम लॉजिस्टिक कहते हैं, और लोकल भाषा में हम इसको ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू आवर ऑब्जेक्टिव पार्ट है। मैं इसको आपको थोड़ा समझाता हूँ एक बार। व्हाट इज द लॉजिस्टिक, हमारे ये पहला चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर है इंडिया डोमेस्टिक ऑपरेशन कैसे काम करती है, इंडिया में कैसे काम करते हैं। फिर फंक्शनल हम आपको बताएंगे, एप्लीकेशन के थ्रू सप्लाई चेन का प्रोसेस कैसे चलता है, वेयर हाउस मैनेजमेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट क्या है, फीट ऑपरेशन कैसे होता है, 3PL 4PL में क्या चीज़ें होती हैं, ई कॉमर्स क्या चलता है। फिर उसके बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा, मेन टॉपिक, वो होगा सार्क एक्सपोर्ट ऑपरेशन प्रोसेस। ओके, आई एम ऑडिबल नाउ? Yes, yes. ओके, सो आई एम गोइंग टू आवर फर्स्ट चैप्टर। मॉड्यूल हमारा 1 है, व्हाट इज द लॉजिस्टिक। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि लॉजिस्टिक का काम है एक जगह से दूसरी जगह माल को पहुंचाना, ठीक है। तो हम ये पहले लॉजिस्टिक का डेफिनेशन हमने ऊपर लिखा हुआ है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट दैट्स प्लान, implements and control of efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, service, and related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customer requirement. Okay. Now I am to going to wire, sorry, logistic via supply chain management. हम इनमें दोनों में डिफरेंस कैसे समझ सकते हैं, वो हम आपको देखे हैं, दिखाते हैं। ये स्कोप में आते हैं हम। लॉजिस्टिक को क्या स्कोप मिलता है, मूवमेंट का एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, जबकि सप्लाई चेन को क्या मिलता है, एंड टू एंड नेटवर्क ऑफ पार्टनर। एंड टू एंड जगह जगह से लोगों से हम बातचीत करें, उनका सारा कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखें, सारे काम को कराएं, बनाने से लेके उनके माल पहुंचाने तक, लॉजिस्टिक पार्ट भी ये इसमें इंक्लूड है। दूसरा हमारा जो पार्ट है, फोकस। लॉजिस्टिक में हम ऑपरेशनल फोकस करते हैं, जबकि सप्लाई चेन में हम स्ट्रेटजी से शुरू करते हैं। नंबर 3 हमारा की एक्टिविटीज़ है, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउस मैनेजमेंट, मैंने बोला आपको भी, वेयर हाउस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट। लास्ट मेल का मतलब ये होगा कि लास्ट मेल डिलीवरी, कस्टमर के पास माल पहुंच गया, दिस इज ए लास्ट मेल। सप्लाई चेन क्या करता है, सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर माल किसी वजह से कुछ उसमें डैमेज है, क्लेमेज है, तो वो माल हम रिटर्न भी लाते हैं, सप्लाई चेन ये करती है। जबकि ट्रांसपोर्ट क्लेम डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्लेम क्लियर कर देती है। ओनरशिप क्या होता है, लॉजिस्टिक में ओनरशिप क्या होता है, सप्लाई चेन में क्या होता है। लॉजिस्टिक में हम एक कंपनी में रह के ओनरशिप लेते हैं सिर्फ, जबकि सप्लाई चेन में अक्रॉस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, हम उनमें ओनरशिप लेते हैं। ओके, एनी डाउट? अगर किसी को कुछ डाउट लगता है तो वो डेफिनेटली पूछ सकता है, या आप Yes. चैट चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। मैम मेरा फोटो दिख रहा है क्या, क्योंकि मुझे इधर डिस्प्ले जी नहीं हो रहा है। जी जी, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, अब हम चलते हैं 7 R फ्रेमवर्क ऑफ लॉजिस्टिक।
साहिल जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार प्रकाश जी। जी। मेरा सवाल यही है कि जैसे आपने जो बताया ओनरशिप का, कि एक तो आप एक कंपनी से डील होता है, और करेक्ट। जो एससीएम है वो मल्टीपल जो है कंपनीज को दे हैंडल्स। करेक्ट। अब इसमें जो है हर एक कंपनी के वायर हाउस का जो कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, जब माल को एक तरफ से दूसरी तरफ लिया जाता है, तो जी। वो उसके साथ क्या ये भी बताया जाता है कि भाई आपका काम है इस वेयर हाउस को डिलीवर करना? तो ये मेरा सवाल था। और भाई वेयर हाउस से फर्दर जो है सप्लाई चेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उसको आगे ले जाना है, तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? नहीं, एक बार दोबारा से अपना क्वेश्चन रेज करेंगे तो मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। मेरा ये सवाल था कि जैसे आप एक कंपनी के ऑर्डर लेते हैं जी। और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, जी। तो इसका जो होता है वेयर हाउस का जो लोकेशन वगैरह का, जी। वो जी। मतलब वही बताते हैं जो कंपनी ऑर्डर देती। जी। करेक्ट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मटेरियल आपको पुणे से काठमांडू ले जाना है, नेपाल में। ओके, आप सुन रहे हैं क्या? जी सर, आप प्लीज बोलिए। हाँ हाँ, जैसे आपको कोई माल पुणे से काठमांडू ले जाना है, दैट्स आप सप्लाई चेन है आपका। आपका कोई वेयर हाउस बॉर्डर पे नहीं है या अन्य जगह पे नहीं है, तो आप कनेक्ट करेंगे 3PL पे। जिसका वहाँ पे वायर हाउस होगा आप उससे कनेक्ट करेंगे, जी सर हमको ये मटेरियल यहाँ पे आपके यहाँ उतारना है, आगे मटेरियल हम ले जाएंगे। तो उसका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो 3PL का वायर हाउस का गोडाउन है, उसका जो ओनर है या जो वहाँ का मैनेजर है, तो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जी मटेरियल हमारा इतने दिन तक आपके पास रहेगा, इसका क्या चार्जेस हैं, हमें ये जो इतना हमें स्पेस चाहिए। तो डेफिनेटली आप वो माल जो है वायर हाउस में 3PL गोडाउन में रख सकते हैं। उसके बाद आगे अपने हिसाब से ले जा सकते हैं। उनका जो एक्सपेंसेस होगा, जो चार्जेस होंगे, वो आपको देना पड़ेगा। दैट्स ठीक है क्लियर? सर। जी सर। और सर जब ये माल को गोदाम में रखते हैं तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 3PL के साथ, जी। उसमें इंश्योरेंस का भी जो है क्या कहते हैं प्रोविजन होता है? करेक्ट, प्रोविजन होता है। आपके पास वो चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, आप चाहें तो लें चाहे तो ना लें। अगर वहाँ पे कोई डैमेज का इशू होता है तो फिर आप वहाँ पे इंश्योरेंस का जो है सुविधा नहीं पाएंगे 3PL के पास से। ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर। ओके सर, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू 7R फ्रेमवर्क ऑफ लॉजिस्टिक। अ, रवि जी, रसिका हियर, एक क्वेश्चन था मेरा। यस मैम। ये आपका वो जो एक पहले पीपीटी पे आपने जो लिखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, वो कॉक्स और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये पहले मॉड्यूल 1 पे ही एंड में एक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इफिशिएंसी स्टॉक। करेक्ट करेक्ट, मैं अभी इस पे आता हूँ मैम। अच्छा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल देके बता सकेंगे क्या? मतलब ये हमारे सिलेबस में भी है, पर जैसे आप इसमें काम करते हैं तो यू कैन एक्चुअली थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं कि इसको एग्जैक्टली कैसे मेजर करते हैं। ओके, मैं अभी इस पे आता हूँ। हाँ, थैंक पहले यू। हम ये 7R का मतलब होता है 7 रूल्स, आर जिसे शॉर्ट फॉर्म। लॉजिस्टिक में 7 रूल्स होते हैं। दैट्स राइट प्रोडक्ट। जैसे मान लो आपने मुझे एक मोबाइल दिया और हमने वो कस्टमर के पास पहुंचाना है। अगर वो सेम पैकेट, कोई उसमें डैमेज नहीं हो रहा है, कोई क्लेम नहीं हो रहा है, या हो सकता है एक्सचेंज हो जाए, मोबाइल की जगह कुछ और करा जाए, तो दैट दिस इज ए रॉन्ग लॉजिस्टिक। ये गलत लॉजिस्टिक होगा। हमने जो कस्टमर से लिया वो कस्टमर के पास भेजा कंसाइनी के पास में, दिस इज ए करेक्ट प्रोडक्ट। ओके। राइट क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब 1 किलो मटेरियल हमने आपसे लिया शिपर से, और हमने 1 किलो मटेरियल पूरा पहुंचा दिया कंसर्नी पार्टी को, दैट्स इज ए करेक्ट लॉजिस्टिक। अगर उसमें कुछ कम ज़्यादा हो गया, दैट्स इज ए रॉन्ग लॉजिस्टिक। राइट कंडीशन। जिस कंडीशन पे आपने मटेरियल लिया है उस कंडीशन पे आप मटेरियल पहुंचा दिए कंसर्नी पार्टी को, दिस इज ए करेक्ट करेक्ट। अगर उसमें कोई डैमेज होता है, कोई फॉल्ट, कोई क्लेम होता है, तो दिस इज ए रॉन्ग लॉजिस्टिक। राइट प्लेस। जैसे आपने मटेरियल पुणे से लिया,
बॉर्डर के लिए आप बोलते हैं कि जी मेरा वहाँ जो सर्विस नहीं है, मैं दिल्ली के लिए नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, तो दिस इज ए राइट प्लेस नहीं हुआ, दिस इज ए रॉन्ग प्लेस। आप जहाँ से मटेरियल ले रहे हैं, जहाँ के लिए ले रहे हैं वहाँ पहुँचाएंगे, दिस इज ए करेक्ट प्लेस। राइट टाइम, आजकल बोलते हैं ऑन टाइम ऑफ डिलीवरी, ओटी बोलते हैं, ओडीडी बोलते हैं कि हमने आपको एक एग्जैक्ट डेट दे दिया है, उस डेट में अगर आप माल पहुंचा पाते हैं, दिस इज ए करेक्ट टाइम, राइट टाइम। ओके। एंड हमारा जो सिक्स फ्रेमवर्क है वो है राइट कस्टमर। मान लो मैंने किसी पार्टी से मटेरियल लिया, मुंबई से, रमेश जी से, और मुझे मटेरियल पहुंचाना है सुरेश जी के पास में। मैं सुरेश जी के पास मटेरियल ना पहुंचा के किसी दूसरे व्यक्ति के पास मटेरियल पहुंचा दिया, दिस इज ए रॉन्ग लॉजिस्टिक होगा। हमने जिससे मटेरियल लिया है, जिसको भेजना है वहां पहुंचाते हैं, दैट्स करेक्ट। राइट कॉस्ट, मान लो हमने एज ए जीआर फ्रेट जो भी बिल हमने बनाई, अगर उसमें पहले तुम्हारी पार्टी से बात होती है कि देखिए जी हमने ये माल इतने पहुंचाना है आपको, अगर आपने उसमें कोई कॉस्ट कम ज़्यादा लगा दी, दिस इज ए रॉन्ग लॉजिस्टिक। आपने जो बिल्टी उसको निकाल के दी, जो या जो उसको फ्रेट के साथ दिया, अगर उस फ्रेट में आ रहा है, दैट्स करेक्ट, क्योंकि बाद में भी चेंजेस होते रहते हैं, दैट्स नॉट ए। तो ये हमारा 7R फ्रेमवर्क ये है लॉजिस्टिक का। हाय रवि जी, सैनी दिस साइड। जी सर। हेलो। अच्छा, मैं ये बोल रहा था, जो आपका लॉजिस्टिक वर्सेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट का टेबल है, राइट, इस जी टेबल में एक तरफ लॉजिस्टिक और एससीएम है, क्या हम एससीएम का जो टोटल 6 का, सॉरी सनी भी आपकी आवाज़ कट रही है। सॉरी सॉरी, मैं बोल रहा हूँ ये जो एससीएम वाला टेबल है, दैट जी आप देखेंगे लॉजिस्टिक और एससीएम का अलग अलग आपने टेबल बनाया है, एंड देयर इज अ 6 थिंग्स, जी जी 6 डिपार्टमेंट, स्कोप, फोकस, की एक्टिविटी, ऑनरशिप और मैट्रिक्स। तो जी क्या हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं आगे? एंड टू एंड, हाउ टू प्रिपेयर द एंड टू एंड नेटवर्क पैरामीटर, स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन क्या होता है, सोर्सिंग कैसे करते हैं अक्रॉस नहीं मल्टीपल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली में थोड़ा सा टाइम का भी फाउंडेशन है, ये दिस इज ओनली फॉर एग्जांपल है। तो सर देन प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में आप ब्रीफ कर दीजिए, ताकि हम लोग को पता चले कि एक्चुअली है क्या ये चीजें, तो आगे चल के इसको समझने में आसानी होगी, बिकॉज आई डोंट नो कि एंड टू एंड नेटवर्क पैरामीटर क्या हो रहा है, स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, या किसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए, तो आप उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट वुड बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, आई गेस, बट मेरे लिए तो होगा। ओके, कोई बात नहीं। इसमें जी हम जो है एक्चुअली अभी हमारे पास काफ़ी इसमें पेजेस बाकी हैं, तो हमें वो कंप्लीट हो जाने दो। आप, हम एक काम करते हैं, इसके लिए नया जो सेशन मैम से बात करके हम कर लेंगे, डोंट वरी, आप निश्चिंत रहिए। हम आपके Yes, पॉइंट नोट करते चल रहे हैं, मैम आप पॉइंट को जो नोट कर लीजिएगा। हम इसके लिए definitely ये नया जो explain हो सेशन कर जाएगा लेंगे। बाद देखिए, में। इसमें सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, आगे चल के अभी हम इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको और बताएंगे। कस्टम का प्रोसेस क्या होता है, इंडिया कस्टम कैसे काम करता है, नेपाल कस्टम, जो बांग्लादेश कस्टम कैसे काम करता है, दैट्स वो चीज़ें अभी हम धीरे धीरे आपको लाएंगे। हमारा ये जो सेशन है वो लंबा चलेगा, डोंट वरी, आप लोग निश्चिंत रहें। जो भी क्वेश्चन रेज आप कर रहे हैं वो हम आगे आपको डेफिनेटली उसके बारे में समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है ना। सेशन हमारा ये क्लोज नहीं होगा, अभी आगे चलेगा, डोंट वरी, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, बस यही मेरा क्वेश्चन था। ओके, हाँ हाँ। इफ इट इज गोइंग टू कवर नेक्स्ट, दैट इज फाइन। Okay, now I'm going to our module number 2, India domestic logistic end-to-end process. Okay, हमारा जो पहला इसमें टॉपिक है वो ओरिजिन एंड पिकअप। पिकअप को आप फर्स्ट मेल भी बोल सकते हैं। ओरिजिन का मतलब होता है कि आप जहाँ से भी मटेरियल को पिक कर रहे हैं, जहाँ से मटेरियल को उठा रहे हैं। शिपर रेज, इंडेंट, बुकिंग, ट्रांसपोर्टर, अराइविंग व्हीकल, पीओडी, एलआर जनरेट एट ओरिजिन। पीओडी क्या होता है, एलआर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एलआर का मतलब होता है लॉरी रिसिप्ट, आप उसको जीआर भी बोल सकते हैं, गुड रिसिप्ट भी बोल सकते हैं, सारी कंपनियों में अलग अलग उसके लैंग्वेज होते हैं। एलआर का होता है, एलआर जैसे आपने कोई मटेरियल हमें पुणे से दिया, जी हमें ये मटेरियल तो गोरखपुर भेजना है,
और आपने बिल मुझे दे दिया कि जी इस बिल के तहत ये मटेरियल जाएगा, तो उसमें शिपर का भी नाम होगा, कंसाइनर का भी नाम होगा, कंसाइनी भी होगा। तो हम जो ट्रांसपोर्ट में जीआर बनता है वो आपके बिल के हिसाब से बनता है। जो शिपर होता है मटेरियल देता है उसके बिल के अनुसार ही बनता है। उसमें कितने पैकेट हैं, कितना वेट है, भेजने वाला कौन है, पाने वाला कौन है, कितने वैल्यू का मटेरियल है। दैट्स राइट। पीओडी का मतलब क्या होता है? प्रूफ ऑफ डिलीवरी। जैसे मान लो मटेरियल आपका डिलीवर हो गया, ओके, मटेरियल आपका डिलीवर हो गया, तो आपने जिस गाड़ी से मटेरियल भेजा है उसके पास में कंसाइनी या जो भी डिलीवर लास्ट मेल का ऑप्शन होता है वो उस पर स्टैंप मुहर सिग्नेचर करके देता है, जी सर हमें मटेरियल मिल गया है, हमारा माल ओके है। अगर उसमें कोई डैमेज क्लेम शॉर्टेज भी होता है तो वो उस पर मेंशन करता है। तो आप जब गाड़ी का पेमेंट करते हैं तो उसमें फिर उस पर ध्यान देते हैं कि हमने ये पेमेंट रोकना है, देना है। अगर मटेरियल ओके, नो डाउट आप श्योर हैं कि पेमेंट विल बी डन टू द वेंडर। अदरवाइज यू विल नॉट पेमेंट टू वेंडर विदाउट योर डिडक्ट द क्लेम। ओके। नंबर 2, प्राइमरी फ्रेट। एक मिनट रविंदर जी, क्या कह रहे हैं आप? रिसीव्ड मटेरियल एक्नॉलेजमेंट, दैट्स राइट, बोल सकते हैं, नो डाउट, करेक्ट। प्राइमरी फ्रेट, प्राइमरी फ्रेट का मतलब ये है आपका जो लाइन हॉल मूवमेंट वाया नेशनल हाईवे ट्रैक और इंडियन रेलवे, फ्रेट फास्टैग मैंडेटरी एट टोल प्लाजा, ये सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, नो डाउट। प्राइमरी फ्रेट आपका एक जो बेसिक फ्रेट होता है बिल्टी पे, जीआर फ्रेट होता है वल्ली, उसको हम प्राइमरी फ्रेट बोलते हैं। जो हमारा रेट होता है 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, वो उसको हम प्राइमरी फ्रेट बोलते हैं। उसके अलावा जो फ्रेट लगते हैं वो सेकेंडरी फ्रेट में आते हैं, दैट्स आगे मेंशन होगा, मिलेगा आपको वो। अच्छा, हमारा पिकअप हो गया। तो व्हाट पीओडी फुल फॉर्म? प्रूफ ऑफ डिलीवरी। लोकेश जी, प्रूफ ऑफ डिलीवरी बोलते हैं। यस यस, अच्छे जी, दैट्स राइट। हब एंड ट्रांसशिपमेंट पॉइंट क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका पुणे में कोई ब्रांच है, आपने वहां से 100 किलो मटेरियल पिक किया। अब 100 किलो मटेरियल तो आप पूरी गाड़ी में भेज नहीं सकते हैं, राइट? तो आपके पास वहां पे नियर अबाउट में 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पे कंपनी हब तैयार करती है। तो हब में सारे जो हमारे ब्रांचेस होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, वो मटेरियल हब में भेजती हैं। उसको ट्रांसशिपमेंट भी आप बोल सकते हैं। हब में मटेरियल भेजने से क्या होता है कि फिर वहाँ पे सारी जगहों से माल आता है, इकट्ठा होता है माल। वहाँ से फिर एफटीएल गाड़ी, फुल ट्रक गाड़ी होती है, या जहाँ भी लास्ट में भेजना है आपको, वहाँ के लिए मटेरियल पूरा तैयार होता है। 10 टन, 15 टन, 16 टन, 20 टन, जो भी गाड़ी हम लगा के फिर मटेरियल को पूरा आगे भेजते हैं। दिस इज ए हब एंड ट्रांसशिपमेंट, ओके। हमारा फोर्थ जो है वो सेकेंडरी फ्रेट। जैसे कि मैंने बताया, प्राइमरी फ्रेट तो आपका गियर फ्रेट में आ गया, लेकिन सेकेंडरी फ्रेट में हमारे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। लोडिंग अनलोडिंग भी आता है, उसमें कंक्लूड होता है। जैसे मान लो आप पार्टी के पास गए, वहाँ पे पार्टी के पास में लेबर्स नहीं है, तो यू विल बी अरेंज फ्रॉम द लेबर एंड इंक्लूडिंग इन द फ्रेट एलआर, ओके। उसके बाद आपका पिकअप चार्ज भी उसमें लगता है अलग से, यू विल ऐड इन द जीआर पिकअप चार्ज। सीएल फ्रेट होता है, जबकि वो मैंडेटरी है, हर एक बिल्टी में वो लगना लगना होता है। एंड अब हम चलते हैं अपने 4-5 स्टेप पे, लास्ट मेल डिलीवरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट मेल डिलीवरी मतलब लास्ट का स्टेशन हो गया कि आपने मटेरियल डिलीवर करा दिया। जैसे मान लो आपने मुंबई से कोई मटेरियल बुक किया गोरखपुर के लिए, और वो आपने मटेरियल गोरखपुर डिलीवर कर दिया। दिस इज लास्ट मेल डिलीवरी। उसके आगे कहीं मटेरियल जाना नहीं है, कोई ट्रांसशिपमेंट नहीं होना है, कोई हब में नहीं जाना है। दैट्स इज ए लास्ट मेल ऑफ डिलीवरी, ओके। इसमें कोरियर भी काम करता है, एफटीएल भी करता है। नाउ
इसमें मैं कुछ चीजें आपको एडिशनल बताता हूँ। ये बिल क्या होता है, ये बिल का यूज क्यों किया जाता है, ये बिल क्यों जरूरी है। ये बिल ये एक स्टेट गवर्नमेंट का हमारा प्रोसेस है, इसको फॉलो करना पड़ता है। दिस इज ए मैंडेटरी फॉर द ऑल। अगर आपका मटेरियल का बिल 50,000 के नीचे है तो गवर्नमेंट उस पर मैंडेटरी नहीं करती है। अगर 50,000 के ऊपर की वैल्यू है तो डेफिनेटली आपको कंसाइनर से ये बिल लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर बिना ई बिल के आप मटेरियल आगे भेजते हैं तो फिर उस पर सेल टैक्स जीएसटी वाले पकड़ेंगे, तो दैट्स पेनाल्टी टू ट्रांसपोर्टर। हैवी पेनाल्टी, 100% पेनाल्टी है ट्रांसपोर्टर पे, दैट्स लॉजिस्टिक पे। जैसे मैंने बताया आपको, LR, लोरी रिसिप्ट, GR, सबके जो कंपनियों के अलग अलग अपने मतलब कि बोलने के लिहाजा होते हैं, तहजीब होते हैं कि हमें LR बोलना है, GR बोलना है, CN बोलना है। लोरी रिसिप्ट बोलते हैं उसे, GR मतलब गुड्स रिसिप्ट बोलते हैं। प्राइमरी ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट होता है ये, इशूड बाय द ट्रांसपोर्टर। कंसाइनर, कंसाइनी नेम, ड्राइवर कॉपी वगैरह होती है। एक कंसाइनर की कॉपी होती है, कंसाइनी कॉपी होती है, ड्राइवर कॉपी होती है। ओके। फास्टैग, फास्टैग तो मैंडेटरी होता है। आप लोग देख रहे हैं टोल प्लाजे पे जाएंगे तो वो चीज़ें आपको पे करनी ही करनी है, उसमें कोई रउअत नहीं होता है। आपका फास्टैग आपके जो डैशबोर्ड पे लगा हुआ होता है, वो जो ऑटो कट कर लेते हैं पैसा। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारा है GST ऑन फेट। अमित जी क्या कह रहे हैं, 10,000 के 6 हैं तो ये बिल रिक्वायर्ड नहीं। अगर 6 बिल आपके पास में हैं और 10-10 हज़ार के हैं, सेम पार्टी के हैं, और एक ही बिल की आप भरना चाहते हैं, दैट्स रिक्वायर्ड। ओके। इफ वैल्यू इज गुड बिलो, यस, अगर आपका गुड वैल्यू 50,000 के नीचे है तो दिस इज नॉट मैंडेटरी एज ए गवर्नमेंट। ओके। GST ऑन फ्रेट, हमें जैसे मान लीजिए अभी तो गवर्नमेंट हमें जो ट्रांसपोर्टर क्या कर रहे हैं कि जो RCM कर दे रहे हैं, रिवर्स चार्ज मैसेज कर दे रहे हैं। जैसे कि मटेरियल आपने भेजा पुणे से गोरखपुर, और गोरखपुर वाली पार्टी के पास में GST नंबर नहीं है। हाँ हाँ, ओके ओके। मैं आगे ये बात को आपको जो समझा रहा हूँ, सुशील जी, डोंट वेरी। ओके। जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल आपको मुंबई से दिया, गोरखपुर लाना है या वे कहीं ले जाना है। अगर उस पार्टी के पास में GST नंबर नहीं है तो आपको GST 5% फ्रेट पे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है। अगर GST नंबर पार्टी के पास में नहीं है तो, अगर है तो वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट पेड कर सकता है। दिस इज RCM के तहत आपका बिल जनरेट होगा। तो वो आप आपके पास में GST नंबर है तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड कर सकते हो। अदरवाइज हम ट्रांसपोर्टर लेके, लॉजिस्टिक टीम लेके वो गवर्नमेंट को पेड कर देंगे। दिस इज ए, गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए चाहिए एनी हाउ। ओके। अक्षय जी क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज। एक सेकंड। मैम प्लीज अनम्यूट टू अक्षय जी। Yes. We have unmuted him. He is connecting to the audio. ओके। हेलो। अक्षय, अक्षय जी, यस प्लीज प्लीज एक्सप्लेन। यस रवि सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है सर, अगर एक ही कंसाइनर ने 25,000 का एक बिल बनाया है और एक 30,000 का बनाया है, तो हम्म। दो अगर बिलिंग में टोटल अमाउंट 50,000 के ऊपर जाता है तो ई वे बिल कंपलसरी होगा कि नहीं होगा?
देखिए ये आपका मैटर करता है बिल्टी आप कितनी बनाएंगे, एक बनाएंगे या दो बनाएंगे। जीआर आप दो बनाएंगे एक बनाएंगे, जो ट्रांसपोर्टर का या लॉजिस्टिक का जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक बनाएंगे दो बनाएंगे। नहीं तो अगर दो इनवॉइस रहेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स दो सेट में बनेंगे। दो सेट में बने दिस इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन अगर एक सेट में बनाएंगे तो दिस इज ए मैंडेटरी। ओके, अंडरस्टूड। ओके। अंडरस्टूड, थैंक यू। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आवर मॉड्यूल नंबर 3। अगर मॉड्यूल नंबर 2 पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो रेज कर सकता है, वो मेरे से पूछ सकता है अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो हेलो जी सर, जी बताएं आई बताएं। हैव अ क्वेश्चन। सर मतलब फॉर एग्जांपल 1 लाख का मटेरियल अगर इंटर स्टेट मतलब महाराष्ट्र में ही हमें ट्रांसफर करना है तो हमें हम्म। टैक्स इनवॉइस लगेगा या नहीं लगेगा? टैक्स इनवाइस या ये बिल तो लगेगा मतलब अब 50,000। नहीं, आप अगर कोई मटेरियल स्टेट पे भेजते हैं तो उसमें कौन सा इनवाइस लगता है, टैक्स ही लगता है ना। मतलब नहीं नहीं, अगर सपोज 50,000 के अंडर रहेगा तो उसके लिए अपना डिलीवरी चालान के ऊपर भी ट्रांसफर कर सकते हैं ना? नहीं, डिलीवरी चार्ज इज ऑप्शनल। हम्म। डिलीवरी चलान इज नॉट विजिबल की जो है रेडी, आप नेक्स्ट टाइम भी आप उसको यूज करेंगे। डिलीवरी चार्ज जो ऑप्शनल, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, दिस इज नॉट। डिलीवरी चालान जो होता है वो ऑप्शनल होता है, आप उसको एक बार दो बार यूज कर सकते हैं लेकिन हमेशा आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। टैक्स इनवाइस इज ए कंपल्सरी। यस सर, ओके थैंक यू। ओके। थैंक यू। और किसी कुछ डाउट मॉड्यूल नंबर 2 Yes. में? So we have a lot of questions I can see. काफी लोगों को काफी सवाल है, but if it is possible हम questions अगले 5-7 मिनट में लेंगे, so ओके that Mr. Ravi will also be able to complete his modules, right? Okay, ओके मैम। Sunny, Ganesh, I hope that is okay. You can note down the questions. Everyone please note down कीजिए. Mr. Sushil आप भी please note down कीजिए, ठीक है? So that yes, I understand you have a question, Mr. Sushil, but I kindly request you to please, okay, you can put it in the chat box. Yes, Mr. Ravi, please continue. Thank you. मॉड्यूल नंबर 3 हमारा है, ये फंक्शंस हैं, एप्लीकेशंस हैं और ऑपरेटिंग मॉड्यूल इन लॉजिस्टिक। वायर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, दिस इज ए सॉफ्टवेयर जिसको हम सॉफ्टवेयर के तहत कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें इनबाउंडिंग, पुटवे है, पिकिंग है, पैकिंग है, आउटबाउंड है, स्टॉटलिंग है, ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जैसा भी आप उसको ऑप्टिमाइज करके अपने सिस्टम को डेवलप करके चलाना चाहें आप चला सकते हैं। वेयर हाउस में ये सारी चीज़ें आती हैं। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आप उसको, उस पर भी यही मतलब सिस्टम ही है। लोडिंग प्लानिंग कर सकते हैं आप, मैनिफेस्ट तैयार कर सकते हैं, राउट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कैरिंग एलोकेशन कर सकते हैं, फ्रेट ऑडिट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, वेंडर पेमेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन इन ईआरपी, आप उसको ईआरपी से कर सकते हैं, ओरेकल से भी कर सकते हैं, सैप से कर सकते हैं। मतलब ये एक प्रोसेस है, सिस्टम है, एप्लीकेशन है। आप इससे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इससे आप अपना कंपनी को अपने इस प्रोसेस को चला सकते हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में सेफ्टी स्टॉक हो गया, रिकॉर्ड पॉइंट हो गया, ईक्यू हो गया, डीआरपी हो गया, डिमांड हो गया, सेलिंग वाया स्टैटिकल एंड एमआर फोर्सिंग मॉडल, ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं। आप इनमें किसी तरीके से जैसे अपने सिस्टम को बनाना चाहें आप बना के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज ए फॉर कंट्रोलिंग ए सॉफ्टवेयर। फ्लीट मैनेजमेंट में क्या होता है, व्हीकल लाइफ स्टाइल हो गया, ड्राइवर का बिहेवियर होगा, ड्राइवर का डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे, आप उनसे डॉक्यूमेंट अरेंज करिए। फ्यूल इफिशिएंसी हो गया, प्रिवेंटिव हो गया, मेंटेनिंग शेड्यूलिंग हो गया। 3PL 4PL, 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होता है और 4PL मतलब फोर पार्टी लॉजिस्टिक।
इसमें आप एसिड्स बेस आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, वायर हाउस का काम है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन का है। 4PL हो गया, लीड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, मैनेज PPLs। ई कॉमर्स हो गया हमारा ये, डी D2C, डिलीवरी टू कस्टमर, फुलफिलमेंट, SLA बेसिस, LSA, RTO मैनेजमेंट, EOD, रिक्लामेशन, NDRA, नॉन डिलीवरी रिपोर्ट फ्लो। देखिए इसमें नीचे 3PL 4PL का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। 3PL थर्ड पार्टी होता है, एसिड्स इसमें जो भी होता है 3PL में थर्ड पार्टी का एसिड्स होता है। ट्रांसपोर्ट प्लस वायर हाउसिंग का स्कोपमेंट होता है। एग्जांपल में देता हूँ, जैसे महिंद्रा लॉजिस्टिक हो गया, डिलीवरी ब्लू डार्ट। 4PL लीड प्रोवाइडर, इसमें कोई एसेट्स नहीं होता है, मैनेज मल्टीपल 3PLs हैं प्लस स्ट्रेटजीज। जैसे आज की कंपनियां हैं DHL सप्लाई चेन, DB स्टेशन इंडिया। ओके, ना ये नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन होता है नंबर नो। इसमें हमारा कोई एसेट्स नहीं होता है। एंड टू एंड सप्लाई चेन इंक्लूडिंग टेक्निकल प्लेटफॉर्म होता है, इससे अमेजन लॉजिस्टिक नेटवर्क काम कर रही है। ओके, ना हो हमारा जो मेन पार्ट है वो है सार्क एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक इंडिया टू नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन व्हाट इज द सार्क? Anybody explain what is the SARC? Yes, correct. साउथ एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन को हम सार्क बोलते हैं। इसमें कितने देश शामिल हैं? एनीबडी एक्सप्लेन? करेक्ट, हमारे इसमें 8 देश शामिल है, जो कि अभी रिसेंटली 7 ही पहले था, 2007 में श्रीलंका भी आया है, तो 8 हो गए हैं। इसका फाउंडेड कहाँ है, कोई कंफर्म कर सकता है? करेक्ट, नेपाल में, काठमांडू में है। दैट्स राइट, गुड, वेरी गुड। देखिए हमारा जो मेजर आज का पार्ट है ये है नेपाल का, सौर का है। जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल आप पुणे से भेज रहे हैं काठमांडू के लिए, राजपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? प्लीज चैट बॉक्स, प्लीज एंटर द चैट बॉक्स। ओके Yes, Mr. Ravi. In the meanwhile, you can continue. ओके ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने कोई मटेरियल पुणे से काठमांडू के लिए भेजा, तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? किसी को इसके बारे में कुछ आइडिया है? इंडिया में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे या नेपाल में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? नो, नो एनिसु, अभी हम आगे इसको कवर करेंगे, डोंट वेरी, आप लोग चिंता ना करें। जैसे आपने कोई मटेरियल पुणे से काठमांडू के लिए भेजा, वो मटेरियल बॉर्डर पे है, इंडियन बॉर्डर पे, तो पहला हमारा जो स्टेप है वो हम डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, इसमें कौन किस डॉक्यूमेंट की कमी है।
या कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है कि जो हमारा बुकिंग ब्रांच है उसको डॉक्यूमेंट के बारे में आइडिया ना हो। जब हम डॉक्यूमेंट सारा चेक कर लेते हैं उसके बाद फिर हम वो कस्टम में लगाने का प्रयास करते हैं। अदरवाइज कस्टम का जो हमारा ऑफिसर है वो डॉक्यूमेंट बिना पूरा चेक किए नहीं लेता है। तो हमारा इसका जो प्रोसेस है वो सीएचए शुरू होता है। सीएचए मतलब कस्टम क्लियरेंस हाउस, कस्टम हाउस एजेंट भी बोल सकते हैं आप उसको। हम उसको डॉक्यूमेंट देते हैं, हम डायरेक्ट कस्टम के अंदर ट्रांसपोर्टर की एंट्री नहीं होती है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की एंट्री डायरेक्ट नहीं होती है। वहाँ पे सीएचए के माध्यम से ही आप जा सकते हैं। आप सीएचए को डॉक्यूमेंट देंगे, वो डॉक्यूमेंट को ब्रीफली चेक करेगा। अगर उसमें किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की कमी है तो वो आपको बताएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में आइडिया नहीं है तो, अगर आइडिया है तो आप स्वयं ही पार्टी से बात करके डॉक्यूमेंट मंगाने का प्रयास करेंगे। आपने डॉक्यूमेंट मंगा के कस्टम में दे दिया, सीएचए को दे दिया, फिर वहाँ का जो प्रोसेस है वो चेकलिस्ट तैयार करता है। चेकलिस्ट का मतलब कि वो एक फॉर्म फिल, जैसे आप एलआर बनाते हैं वैसे कस्टम का जो पहला प्रोसेस होता है वो चेकलिस्ट का होता है। वो चेकलिस्ट तैयार करने के बाद आपके पास भेजता है, यानी लॉजिस्टिक टीम को भेजता है या ट्रांसपोर्टर को भेजता है। अगर ट्रांसपोर्टर को लगता है कि इसमें पार्टी के अप्रूवल की नीड है तो वो पार्टी को भेज के अप्रूवल लेता है, सर ये आपका चेकलिस्ट तैयार हो गया, इसमें अगर किसी प्रकार का कोई आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज़ इसको चेक करके आप बता दें ताकि उसको हम सुधार सकें। क्योंकि चेकलिस्ट तक हम सुधार सकते हैं, उसके बाद फिर नहीं सुधार सकते हैं। चेकलिस्ट हमारी अप्रूवल हो गई। चेकलिस्ट अप्रूवल होने के बाद फिर वो जाता है लियो पे, वो कस्टम अधिकारी के पोर्टल पे जाता है। कस्टम अधिकारी के पास में हम वो चेकलिस्ट लेके जाते हैं, अप्रूवल करके फिर वो नेक्स्ट फर्दर जो भी होता है अपना गेट पास वगैरह काटता है। गेट पास वगैरह काट के वो ट्रांसपोर्टर को या सीएचए को हैंड ओवर कर देता है। फिर वो सीएचए ला के ट्रांसपोर्टर को देगा। नेक्स्ट गाड़ी तब मूव होगी, अदरवाइज गाड़ी आप आगे नहीं ले जा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रेफरेंशियल एक्सेस रूट नेशनल हाईवे 27 28 वाया पटना मुजफ्फरपुर ICP बीरगंज इंटीग्रेटेड चेकलिस्ट चेक पोस्ट सिंगल विंडो की एक्सपोर्ट। अब क्या क्या सामान जाता है इसमें थोड़ा सा डिफिनेशन दिया हुआ है। कॉटन यार्न हो गया, शुगर हो गया, मशीनरी पार्ट हो गए, स्टील हो गया। नेपाल इंपोर्ट परमिट की भी जरूरत होती है इन सब चीज़ों में ना, वरना फिर ये रिस्ट्रिक्टेड गुड्स हैं। करेंसी INR एक्सेप्ट होती है और NPR पिक्ड होता है 1। जैसे अगर मान लो नेपाल की करेंसी 10 रुपये है तो वो हमारे इंडिया में, सॉरी अगर नेपाल में 16 रुपये है तो वो हमारे इंडिया में 10 रुपये होता है। 1.16 उसको डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे यहाँ 100 रुपया हो गया तो वहाँ पे एक 100 रुपये 160 रुपये होती है। करेक्ट। भूटान में भी सेम प्रोसेस। भूटान में गाड़ी अंदर लास्ट मील तक नहीं जाती है और बांग्लादेश में भी सेम प्रोसेस है, गाड़ी अंदर नेपाल में नहीं जाती है। जबकि नेपाल में गाड़ी लास्ट मील तक इंडियन गाड़ी जाती हैं, जबकि भूटान और बांग्लादेश में लास्ट मील तक गाड़ी ना जाके हमारे बॉर्डर पे गाड़ी ऑफलोड होके क्रॉसिंग होके वो भूटान की गाड़ी में या बांग्लादेश की गाड़ी में मटेरियल जाता है और हमारा टाई अप होता है, हम उनसे ₹2 का फ्रेट वहीं पर कलेक्ट कर लेते हैं। जबकि नेपाल में ऐसा नहीं होता है। ₹2 के केस में माल अंदर तक जाता है। फिर वहां पर भी हम कंसाइनी पार्टी से नेपाली रुपीस भी ले सकते हैं, लेकिन उसको इंडिया में ट्रांसफर करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए तो ही वो पैसा इंडिया ट्रांसफर होगा, अन्यथा वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अब हम आपको ले चलते हैं डॉक्यूमेंट्स पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसमें कुछ लोगों का काफी क्वेरीज भी आ रहा है। यस, एक्शन कोड इससे डिपेंड होता है, डिपेंडेंसी होते हैं एक्शन कोड।
Yes, learners, you can raise your hand. We can take questions now, I believe. Sunny and Mr. Rajpal. Yes, Ganesh. यस गणेश जी, मुझे ये पूछना था। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सॉरी, गुड आफ्टरनून। मुझे ये पूछना था, अभी मैं एक्सपोर्ट करता हूँ यहाँ से यूरोप में। तो मेरा जो भी सप्लायर के पास से मटेरियल आता है, तो डिलीवरी चलन पे लेके आता हूँ मैं यहाँ पे। तो अच्छा, डिलीवरी चलन पे आने के लिए जो भी सप्लायर है मुझे वो बोलता है कि डिलीवरी चलन इज नॉट लीगल। करेक्ट, जैसे तो मैंने आपको बताया उसके अभी अभी। रिगार्डिंग थोड़ा मुझे ब्रीफ कीजिए कि डिलीवरी चलन इज लीगल और नॉट। डिलीवरी चालान मैंने बताया, डिलीवरी चालान लीगल नहीं है, किसी जगह इलीगल। आप इससे एक दो बार हो सकता है लेके चले जाएं या कई बार लेके चले जाएं, लेकिन इन द केस भगवान ना करे ऐसा हो, फंसने के बाद काफ़ी समस्याएं आपको आएंगी, तो आप प्रॉपर जो प्रोसेस है वो फॉलो करें, तो कुछ कोई वो बात। ऑप्शन है विदाउट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वो इंस्पेक्शन और पैकेजिंग होता है, तो यहाँ पे लेके आने के लिए मुझे कोई दूसरा ऑप्शन है विदाउट इनवॉइस, क्योंकि मैं यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट करता हूँ यूरोप कंट्री के लिए। नहीं नहीं, विदाउट इनवाइस यू विल नॉट, मतलब नहीं ला सकते हैं। कहीं भी आप जाएंगे, आप जो इंडिया में माल भेज रहे हैं वहां भी जो इनवाइस लग रहा है, तो इनवाइस इज ए मैंडेटरी। ओके। तो हाँ, आप बता रहे हैं कि डिलीवरी चलन लीगल नहीं है। करेक्ट, लीगल नहीं है। ओके। मैं बता, डिलीवरी चलान एक दो बार, जैसे मटेरियल आपका कोई डैमेज है, शॉर्टेज है, या बहुत दिन से पड़ा हुआ है, वो कोई पार्टी नहीं ले जा रही, तो आप डिलीवरी चलान के तहत उसको ले जा सकते हैं। लेकिन ओके। उसके उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर बिल बनाना पड़ता है डिलीवरी चलान का। उसके तहत आप जीआर जनरेट करते हैं। जीआर के ओके। तहत आप ई बिल जनरेट करते हैं। ई बिल जनरेट करने के बाद ही ये माल जा सकता है। डिलीवरी चलन के साथ मेरा यूए बिल भी आता है। हाँ, नहीं लेकिन हमेशा के लिए ठीक नहीं है, ये गलत होगा, मेरा कहना ये। ओके, ठीक है। थैंक यू। जी जी, दुर्गेश जी। सर मेरा जो सवाल है ना, वो ये है कि जो नेपाल और भूटान के केस में स्पेशली जो हम्म, जब हम सप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में जो शिपिंग बिल है वो कभी कभी जनरेट नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन, और जो फंड्स का ट्रांसफर होता है बेसिकली आईएनआर में होता है, ना कि फॉरेन करेंसी में। तो ऐसे कंडीशन में क्या वो मतलब जो हमारा आउटस्टैंडिंग रहता है आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कैसे रहेगा, मतलब सेटलमेंट फिर? नहीं, शिपिंग बिल जनरेट नहीं होता है, दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट शिपिंग बिल। तो नहीं हो सकता है शिपिंग बिल तो। क्योंकि सर कई बार ऐसा होता रवि है ना जी, कि हम जब सप्लाई करते हैं तो शिपिंग बिल जनरेट नहीं होता है, बिकॉज जो करेंसी होती है बेसिकली वो आईएनआर में ट्रेड हो रही होती है। तो मतलब वो मैंडेटरी है या उसका कोई एक अनदर ऑप्शन भी है कोई, मतलब? नहीं, शिपिंग बिल तो देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, शिपिंग बिल तो अगर सैंपल भी आप भेज रहे हैं तो बनता है शिपिंग बिल। तो बनना बनना, अगर मटेरियल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो शिपिंग बिल तो जनरेट होता होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे नहीं हो रहा है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा सर आपको। इसमें पर्टिकुलरली इसके लिए फिर मैं सीएचए से टेकअप करूं, या जो ये क्या कहते हैं जो आपने बताया था ना, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर वाला फंडा, तो हाँ उसके हाँ, लिए? नहीं नहीं, आप सीएचए से ही कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि सीएचए ही आपको समझा पाएगा। क्योंकि हम्म। होता क्या है ना, मैं आपको एक जो अंदर की बात बता रहा हूँ। होता क्या है, जैसे कि मटेरियल आप भेजना चाह रहे हो नेपाल में, आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे आईसी कोड वगैरह नहीं है, तो फिर वो क्या हम्म। करते हैं कि उसका कोई प्रावधान है कि 25,000 के ऊपर का माल हम बिना इसके ले जा सकते हैं। ऐसा कुछ है ओके, इसका प्रावधान, लेकिन आप वो कोऑर्डिनेट करिए सीएचए से, तो वो आपको बेहतर तरीके से समझा पाएगा, गाइड करेगा आपको वो। सीएचए विल बी द राइट पर्सन, राइट? जी, करेक्ट करेक्ट, सीएचए इज द राइट पर्सन फॉर दिस। थैंक यू सर। ओके, दुर्गेश जी। Yes. Uh, Motorola Edge. Someone was trying to speak. ओके, Please rename yourself. Okay. In the meanwhile, I think we can go ahead. ओके मैम, हेलो। आई एम। यस। रवि जी, नमस्कार। सॉरी, मुझे एक पूछना था। आपने बोला अभी डिलीवरी चलन लीगल नहीं है, तो जीएसटी के रूल 55 के हिसाब से डिलीवरी चलन ऑन अ जॉब वर्क, फॉर जॉब वर्क के लिए हम भेज सकते हैं, तो ये कर सकते हैं हम?
नहीं, मैंने ये कहा कि ये हमेशा के लिए सही नहीं है। ओके, नहीं वो तो पता है हमेशा के लिए सही हाँ, नहीं है, लेकिन रूल 55 में लिखा है कि जॉब वर्क के लिए आप डिलीवरी चलन पे भेज सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इंस्पेक्शन और पैकेजिंग करता हूँ, करेक्ट करेक्ट। तो इसके लिए ला सकते हैं रेगुलरली या नहीं? नहीं, मैंने आपको बोला ना कि ये बहुत सही नहीं है, बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा, कहीं ना कुछ में केस होंगे, क्योंकि क्या होता है जब आप डिलीवरी चार्ट हम्म। बनाते हो, आप हम्म। उसका ई बिल भी जनरेट करते हो, तो गवर्नमेंट हम्म। के पास जाता है, गवर्नमेंट उसको चेक करती रहती है। इन द ओके। केस कभी कोई घटना घट गई और उस टाइप का हम्म। मटेरियल उसमें नहीं रहा जिस टाइप का आपने डिलीवरी चार्ट बनाया हुआ है, हम्म। तो वहाँ पे चांसेस थोड़ा सा आपके नेगेटिव हो जाएंगे। ओके। हम्म। क्योंकि मटेरियल जाता है, ऐसा नहीं है, डिलीवरी चैनल पे मटेरियल जाता है, ऐसा नहीं है मैं हम्म। कह रहा हूँ कि नहीं जाता है, लेकिन हम्म। ये हमेशा के लिए सही नहीं है। थोड़ा सा अगर ओके। हम जो इनवाइस के थ्रू जाएंगे तो बेटर होगा। ओके। जी। थैंक यू सो मच। ओके सर। तो नाउ आई एम कमिंग आवर 5 मॉड्यूल एग्जिम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय ऑप्शनल या मैंडेटरी, जो भी चीज़ें हैं आप देखिए, नीचे बताता हूँ मैं। अभी भी इसके पहले काफ़ी लोगों का इस पे क्वेश्चन भी रेज हुआ कि सर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कौन कौन सा नहीं लगता है, कौन सा कहाँ लगता है। तो ये डिस्प्ले आपके सामने है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कमर्शियल इनवाइस वो एक्सपोर्टर से जनरेट होता है, इशू करता है एक्सपोर्टर। उसमें वैल्यू, क्वांटिटी, HSN कोड और सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। या नेपाल के लिए मैंडेटरी है, भूटान के लिए मैंडेटरी है और बांग्लादेश के लिए भी मैंडेटरी है। पैकिंग लिस्ट ये भी एक्सपोर्टर से बनता है, इसमें ग्रॉस, नेट वेट, डायमेंशन, पैकिंग डिटेल्स, ये तीनों देश के लिए हमारे मैंडेटरी है। एंड शिपिंग बिल, अभी भाई साहब बात कर रहे शिपिंग बिल के बारे में बात कर रहे थे, तो ये CHA से ही कोऑर्डिनेट करेंगे तो आपको शिपिंग बिल के बारे में वो डेफिनेटली अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। ये तीनों देश के लिए मैंडेटरी है। जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्म भरते समय, चेकलिस्ट तैयार करते समय, एक्सपोर्ट करने के लिए पहला हमारा जो प्रोसेस है वो चेकलिस्ट का है, जो कि वो CHA के माध्यम से ही होता है, और ये हमारे तीनों देश में मैंडेटरी है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, CO, CO हमारे तीनों देश के लिए मैंडेटरी है। इसमें हमें छूट मिलती है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से हमें छूट मिलती है, कुछ ड्यूटी का बेनिफिट्स मिलता है। आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो शायद आपको मिलेगा किस किस HSN कोड पे कितना छूट है। बिल ऑफ लैंडिंग, LR, शिपिंग लाइन्स ट्रांसपोर्टर, टाइटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ गुड इन ट्रांजिट, दिस इज ए मैंडेटरी फॉर these countries, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। LC, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये बैंक इशू करता है, ये नेपाल भूटान के लिए मैंडेटरी नहीं है, जबकि बांग्लादेश के लिए मैंडेटरी है। बिना आप LC के मटेरियल बांग्लादेश में नहीं ले जा सकते हैं, जबकि नेपाल पे और भूटान में आप बिना LC के मटेरियल ले जा सकते हैं। भूटान ट्रेड इनवॉइस, BTI, ये RGOB ऑथराइज करता है। मैंडेटरी फॉर ऑल गुड्स एंट्रीज भूटान, जो भी मटेरियल भूटान में जाना है विदाउट BTI के नहीं जाएगा, दिस इज ए मैंडेटरी, जबकि ये नेपाल और बांग्लादेश के लिए मैंडेटरी नहीं है। हमारा अगला जो है वो नेपाल इंपोर्ट परमिट, नेपाल कस्टम, रिक्वायर्ड फॉर रिस्ट्रिकेटेड कंट्रोल्ड गुड, ये नेपाल में मटेरियल कस्टम ने इसको रिस्ट्रिकेट कर रखा है। ये आप इसके बिना मटेरियल जा सकता है, लेकिन भूटान और बांग्लादेश में नहीं जा सकता है। पैथोमेट्रिकल सर्टिफिकेट, स्टेट एग्रीज फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड्स, फूड्स का आइटम जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं होता है, ना नेपाल में, ना भूटान में, ना बांग्लादेश में।
और ये रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट वो हमारे भूटान के लिए एकदम मैंडेटरी है, जबकि नेपाल और बांग्लादेश के लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर इसमें इस डॉक्यूमेंट में किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे से क्वेश्चन कर सकता है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए ये बेटर होगा। Yes, learners, so we will be taking the question answers in next 10 minutes. In the meanwhile, Mr. Ravi, you can go ahead. Yes. Okay, I can see that we have a lot of questions and it is an amazing thing, right? पर हम क्वेश्चंस लेंगे 10 मिनट में. इन द मीनवाइल मिस्टर रवि आप कंटिन्यू कर सकते हो. यू कैन मूव टू द नेक्स्ट लाइन. थैंक यू. आगे बढ़े हम. यस. मैम शायद पीपीटी हमारी क्लोज हो गई है, तो अभी इस पे जिसका भी क्वेश्चन आंसर है हम उससे डिस्कस कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग. सो वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चंस. पीपीटी शेयर होगी क्या, ये सवाल हमें बार बार आ रहा है. तो आई थिंक मिस्टर रवि आप इसका जवाब दे सकते हो. डेफिनेटली पीपीटी शेयर हो सकती है, डोंट वेरी, हम पीपीटी आप लोगों को शेयर कर देंगे. ओके, सो ये सेशन के बाद आफ्टर द सेशन आपको एक अटेंडेंस फॉर्म शेयर किया जाएगा, जिसमें वंस यू फिल आउट द फॉर्म, राइट, बेस्ड ऑन हुएवर फिल्स आउट द फॉर्म हम आपको पीपीटी शेयर कर देंगे डेफिनेटली. ओके. डेफिनेटली पीपीटी शेयर कर देंगे. अगर यस. इन सारे मॉड्यूल्स पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप रेज कर सकते हैं, पर्सनली भी कर सकते हैं और प्रोफेशनली भी कर सकते हैं. अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते यस. हैं, डोंट वेरी. यस. मिस्टर रवि का लिंक्डइन प्रोफाइल में चैट बॉक्स में डाल देती हूँ. ठीक है. PPT will be shared by email only. You just have to fill the attendance form if you want the PPT, okay? The attendance form will be shared with you in next 10 minutes, let's say. So आपको attendance form fill करना पड़ेगा. मैम इसमें कुछ हेलो. लोगों को काफी क्वेश्चन. जी या मतलब मैं बोलूँ, मतलब मुझे जी अनम्यूट किया है मैम ने. जी बोलिए. फर्स्ट ऑफ ऑल रवि प्रकाश सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नॉलेज. मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हूँ, तो दिस वाज समथिंग वेरी न्यू टू मी. पहले मैंने सोचा मैं लीव कर देती हूँ, बट देन इट स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्टिंग, सो आई स्टेड बैक. ओके मैम. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जितना मैं समझी हूँ, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये स्टैंडर्ड है, राइट, फॉर इवन द करेक्ट अदर करेक्ट. कंट्रीज एंड ऑल, राइट? यस मैम. So I was looking at it from a software development point of view. तो इसे हम AI में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, बिकॉज ये स्टैंडर्ड प्रोसेसेस है. आप कोर्स कर सकते हैं मैम. एक्चुअली तो ऐसा मैं हाँ, मैं सार्क आईटी देखता हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंशियल कहाँ पे आप ये चीज़ को ला के रोक सकती है, मैं वो भी आपको शायद बता सकता हूँ. अभी मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे हमने इसको कहाँ पे ला के रोका हुआ है. जैसे हमारा कोई जीआर प्रिपरेशन हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट लॉजिस्टिक का जो फर्स्ट स्टेप है वो जीआर प्रिपरेशन है. जैसे है हम जीआर प्रिपरेशन के लास्ट स्टेप पे जाते हैं, वहाँ पे हमने ऐड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दे रखा है. विदाउट ऐड डॉक्यूमेंट्स यू विल नॉट सेव योर डेटा. जब आप वहाँ पे सेव करने जाते हैं तो वहाँ पे ये सारी फील्ड्स खुल के आती हैं. आपको वो सारी फील्ड्स मैंडेटरी हैं. आप नो करेंगे दैट्स नॉट मैंडेटरी, अदरवाइज मैंडेटरी. आप उस पर डॉक्यूमेंट अटैच करके करेंगे, इनवाइस को अटैच करेंगे, या जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट उसमें हैं सारे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 42 डॉक्यूमेंट्स
फॉर यूज इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश, भूटान। मैं वो भी पीपीटी के साथ में आप लोगों को डेफिनेटली शेयर कर दूंगा कि कितने डॉक्यूमेंट लगते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हम डॉक्यूमेंट्स पे ही चर्चा करेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ लगता है और उसका क्या यूज होता है। हम उसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो आप वहाँ पे उसको रोक सकती हैं, डेफिनेटली आप सॉफ्टवेयर अपना डेवलप करके वहाँ पे कंट्रोल कर सकती हैं। अच्छा, तो इसमें एआई यूज हो सकता है क्या? एआई मतलब जैसे कि अभी मैंने देखा जो बाकी पेयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आई मीन नॉट एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी है। जी So जी, they were asking you questions कि ये डॉक्यूमेंट लगेगा, वो डॉक्यूमेंट लगेगा and all that stuff. So करेक्ट if करेक्ट we put it into AI will automatically tell them कि हाँ भाई कि भूटान तक तो and बांग्लादेश देश तक तो your Indian vehicle cannot go, but till and you and in Nepal it can go. Currencies also, like you were saying, certain things and all. I करेक्ट, want to treat them. यस। So wouldn't that be helpful for them? Like, if the AI tells them, like if an LLM तो बना नहीं है अभी तक, सिर्फ एक ही LLM बना है इंडिया में ड्राइंग का, जी बट अगर इसका भी LLM बनने की चांसेस हो सकते हैं क्या? बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ आई डोंट नो वेदर इट इज अ कॉन्फिडेंशियल और प्रोप्राइटरी नहीं होगा ये, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टन कस्टम डॉक्यूमेंट्स है, तो ये तो पब्लिक है ही। तो जी, इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट दिस कैन बी पुट इनटू LLM? कर सकते हैं मैम, कर Sorry, सकते large हैं। language. Sorry, I'm using very technical terms. Uh, एक repository. Okay, what do you call it? Yeah. Okay, leave it. मतलब एक database में जहाँ पे even the customers, like certain people who are asking questions, they will come to know automatically. I mean, you're understanding what I'm trying to tell you? ओके, आपको सब कुछ कर सकते हैं मैम, कर सकते हैं आप। अच्छा, okay. हाँ, Okay, thank you, sir. Thank you very much. ओके मैम। रवि जी, LLM is Thank you so large much, language Rasika. model. Okay, sorry. Yes, please go ahead. No, thank you, Yes, thank you. thank you, Somebody Rasika. asked. I हाँ, think we can move to the next question. Yeah. मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा मैम। अच्छा, हाँ, okay. Yes, please go ahead. yes, I'm so sorry. thank you Ravi ji for this session. जी, तो I think it was मैं such a yes. I actually come from the financial management background. तो ओके। मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जैसे डिलीवरी है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है, तो ये अपने रेवेन्यू कैसे बनाते हैं? मतलब अभी ये समझ में आया कि ये ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड ऑल, मतलब ये सब सप्लाई चेन एंड ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर वो यूज करेंगे, पर इनका रेवेन्यू लाइन जनरेशन कैसे रहता है? मतलब और इनका कॉस्ट कहाँ जाता है और प्रॉफिट कहाँ से आता है? मतलब एकदम डिटेल में नहीं, पर एक सिंपल में हाँ अगर हाँ, बता सकेंगे मैं तो। मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। हाँ जैसे आप फाइनेंस से, मैं समझ गया आपकी बात को। हाँ ये जैसे लॉजिस्टिक में क्या होता है कि एक एलआर जनरेट होती है। हाँ, एलआर में उसमें फील्ड होते हैं, किस फील्ड में, किस हेड में कौन सा पैसा जा रहा है। ठीक है, ओके, आपने सेव कर दिया। अब उससे हाँ कॉस्टिंग डिवाइड होती है। कॉस्टिंग बिल भी, जैसे लोरी हायर कॉस्ट आपकी डिवाइड हुई, उसके बाद में आपका लोडिंग अनलोडिंग डिवाइड हुआ। जो भी ओके खर्चे आप उसमें से निकालेंगे वो तो जीआर से ही निकलेगा ना। ओके, तो प्रॉफिट आपका जो आ रहा है वो जीआर से आ रहा है, जबकि अच्छा, खर्चे जो हो रहे हैं आपके वो आपका लोरी हायर से हो रहे हैं। ओके, आप इसको इजीली निकाल सकती हैं कि आपका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है जीआर से। और आपका जो खर्चा है वो जो है लोरी हायर चालान से निकाल सकती हैं। और आपकी जो इनकम है वो जीआर से निकाल सकती हैं। दोनों को डिवाइड करके रेवेन्यू आप निकाल सकती हैं। अच्छा। तो कंपनीज ये जीआर जो है वो ऐसे पब्लिक में नहीं पब्लिश नहीं करते हैं? नहीं, पब्लिक नहीं। जीआर दिस इज ए डॉक्यूमेंट फॉर द ट्रांसपोर्टर और लॉजिस्टिक। जैसे मान लो कि आपसे जो आपने कोई बिल्टी बनानी है दिल्ली से, हाँ, दिल्ली का एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है, वो कंपनी अपने हिसाब से डिवाइड करती है हमें डॉक्यूमेंट नंबर क्या रखना है। डेफिनेटली अच्छा, हर जगह होता है। आप ओके, जैसे आप फाइनेंस में हैं, हाँ, तो किसी कोड को आपको जो ओपन करने के बाद में कोड नंबर मिलता है वो कोड चेंज नहीं होता है। दिस इज ए सेम। अच्छा। तो इनका अभी ग्रॉस मार्जिन या ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, तो इसका डेटा क्या इनके साथ बात करके पता चलेगा या इनके रिपोर्ट्स ही देखने पड़ते हैं? रिपोर्ट्स देखनी पड़ेगी मैम। हाँ, मतलब रिपोर्ट्स एक सोर्स है, पर अगर हम मतलब रेवेन्यू आप जो है देख सकती हैं, ऑनलाइन देख सकती हैं। आपको जो है अप्रोक्सीमेटली रेवेन्यू डिस्प्ले करेगा वो।
अच्छा। लेकिन एग्जैक्ट आपको नहीं करेगा। अच्छा, तो फिर क्या किसी मतलब कंपनी के किसी से बात करके थोड़ा पता चलेगा क्या कि किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ पे उनका खर्चा बढ़ रहा है, कहाँ कम हो रहा है, वो जान कैसे लेंगे? जैसे अभी आप इसमें काम करते तो आपसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ नहीं, मैंने आपको बताया ना कि जैसे मान लो आपने कोई बिल्टी बनाई 10 रुपए की, करेक्ट। हाँ हाँ आपकी गाड़ी का खर्चा 2 रुपया आ रहा है, हाँ तो 8 रुपया विल बी सेव राइटली। हाँ। अगर मान लीजिए वो माल कहीं रास्ते में रुक गया, या गाड़ी वाला माल लेके आगे नहीं जा रहा है, बोला कि जी मैं माल लेके आगे नहीं जाऊंगा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, करेक्ट। हाँ ठीक है। आप हाँ दूसरी गाड़ी लगाओगे, वहां पर लोडिंग लोडिंग लगाओगे, लेबर हाँ लगाओगे, तो हाँ आपका खर्चा वहां बढ़ जाएगा। हाँ। तो आप जब उस खर्चे को बिल्टी से डिवाइड करेंगे तो खर्चा कम हो गया, अच्छा। ज्यादा हो ओके। जाएगा ना खर्चा, सॉरी, खर्चा जो बढ़ जाएगा आपका, लेकिन जो प्रॉफिट घट जाएगा। हाँ हाँ करेक्ट। तो डेटा तो इसी पकड़ में आएगा ना। ओके ओके ओके, गॉट इट। हाँ। और वो जो इन्वेंट्री का है आपने जो रेशो बताया था, तो इन्वेंट्री में काफी ज्यादा अटक जाता है क्या, स्टक रहता है क्या लॉसेस, क्योंकि हाँ हाँ, उठाया नहीं इन्वेंट्री या हाँ होता है, वो तो खराब हो लॉस, जाता है? लॉसेस अच्छा। हो जाता है ना मैम। जैसे मान लो कि बॉर्डर, मैं बॉर्डर का केस बता रहा हूँ। अगर आपने गलती से किसी बिना कंप्लीट डॉक्यूमेंट की वजह से मटेरियल आपने नेपाल में ट्रांसफर कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, हाँ। एक्सपोर्ट कर दिया, फिर हम्म। वो मटेरियल इंडिया में आप नहीं ला सकते हो, ओके। तो टोटली लॉस। अगर वो लॉस। पाकिस्तानी हाँ माल नहीं लेना चाह रही है हाँ और आप गलती से मटेरियल ले जाके नेपाल में रोक दिए, डंप कर दिए, हाँ। पाकिस्तानी माल लेके, टोटल लॉस हो गया, वो तो आपका रेवेन्यू करेक्ट है है। आपका। हाँ करेक्ट। अच्छा ओके। तो यहाँ से सोर्सेस आप लॉस का निकाल सकते हैं, और जो हम्म। जीआर का प्रोसेस बताया, लोरी है चरण खर्चे का बताया, वहां से आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकती हैं। ओके उसका जो रेवेन्यू आप वहीं से पकड़ लेंगे, क्योंकि ओके इसका ओके जो जो ऑपरेशनल प्रोसेस शुरू होता है वो यहीं शुरू होता है, ओके और ओके। जो एंड होता है वो जो लोरी हायर पे होता है। अच्छा, सही है सही है। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस इंफॉर्मेशन। ओके मैम, यस। वेलकम। Yes, thank you so much, Rasika, for your question. And we can move ahead. जिसको जिसको क्वेश्चंस है प्लीज रेज कीजिए आपका हैंड एंड वी विल अलाउ यू टू अनम्यूट. In the meanwhile, we have launched a poll. Please respond to it as well. Okay. I hope the poll is visible. रवि जी, जी सुशील जी बताएं। मेरा एक सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है क्योंकि आप प्रैक्टिकल डील करते हैं इसलिए। करेक्ट करेक्ट और मैं भी दिल्ली से हूँ और आपसे बोलचाल से लगता है आप नॉर्थ इंडिया से ही हैं। तो करेक्ट। मैं दिल्ली में होते हुए भी मैंने जो एक चीज एक्सपीरियंस की है, जी एक तरफ तो सरकार जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने पे खासकर की जो उसे कहते हैं हम लुक नेबर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है। करेक्ट। और मैंने जो देखा है अब मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब बहुत मुश्किल है उनसे डील करने के लिए। चाहे यस आप करेक्ट डिजिटाइज कर दीजिए, जब वो मैंने देखा अंदर बैठ के भी उनके साथ, जब वो फाइल को ही नहीं प्रोसेस करना जानते हैं करेक्ट। और एकदम मास्टर मेंटेलिटी है जून 191 की पहले की है, तो ये कितना डिफिकल्ट है। और कितनी बार मैं बैठ के सोचता हूँ कि जबकि मैं तो एक तरीके से बिजनेसमैन नहीं हूँ, गवर्नमेंट फंक्शनरी था, तो ये जी जी। बिजनेसमैन कैसे काम करते हैं इतने एडवर्स इन्वायरमेंट में, कैसे डील करा जाए इससे, कोई कुछ है रास्ता? क्योंकि आपने बहुत फेस किया है लगता है। यस करेक्ट, आप सही कह रहे हैं। देखिए टेक्निकल, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी तो देखिए, टेक्नोलॉजी सिर्फ वहीं तक काम करेगी जहाँ तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। प्रोसेस कंप्लीट होने के जी बाद में टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है। आपका फिर जी पर्सनल व्यवहार डिपेंड होता है, बिजनेस आप जो इंडिया में बैठ के नेपाल का करें, भूटान का करें, बांग्लादेश करें, जब तक वो प्रैक्टिकल आपके साथ नहीं रहेगा वो, तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। ठीक है। प्रैक्टिकल कहने का मतलब ये है कि वो डेफिनेटली जो समझ। कहना चाहता है वो सही से बोले, सही से बात करे, और सही से चीज़ों को समझाए और समझे, है ना। जी अगर उसके मन में कुछ मतलब जो है
शंका है कि ठीक है मटेरियल भेज देगा, उसका पेमेंट हम यहाँ से नहीं करेंगे, वो हमारा क्या कर लेगा ना। तो दैट दिस मतलब कि पॉसिबल नहीं है कर पाना। वो एक बार कर सकता है, 2 बार कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। जी जी जी। तो प्रैक्टिकल मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक हम फेस टू फेस ना मिलें तब तक कोई बिजनेस करना इस समय सही नाम नहीं। सही नहीं है, सही बात। Okay, ठीक है। thank you so much, थैंक Sushil, यू। for your question. Yes. So, others, please go ahead with your questions. रिमेंबर हर किसी को क्वेश्चन पूछना है, इसलिए सभी को 2 मिनट पर हेड मिलेंगे। उस हिसाब से आप आपका सवाल पूछ सकते हो। प्लीज मैम अनम्यूट योर सेल्फ। मैम मैं यस। ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों की क्या क्वेरीज हैं, थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। इनको क्या जी, चीजें हैं, डेफिनेटली। इनकी क्या इच्छा है सीखने की, या किस चीजों में इनका ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर मैं इसमें वो चीजें डेफिनेटली मतलब जो है एग्जांपल दे के या समरी में नहीं मैं बोल पाया समझा पाया हूँ, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट जो सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। डेफिनेटली। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी जी बताएं बताएं, जी जी। सर मुझे T1 डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी चाहिए था। किसके बारे में? एक डॉक्यूमेंट होता है T1 डॉक्यूमेंट, जो कस्टम्स क्लियरेंस में काम आता है। टीम 1? T1 T1। T1 मैंने तो अपडेटली सुना तो नहीं है कभी T1। इंडिया कस्टम में लगता है या मतलब नो, दूसरे फॉर EU कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज। सॉरी, लग रहा है मुझे उधर के बारे में थोड़ा आइडिया नहीं होगा T1 वगैरह के बारे में। तो मैं शायद इसके बारे में आपको ना ओके बता। सर, ओके सर, थैंक यू। बट और हाउस बिल और मास्टर बिल के बारे में थोड़ा बताइए। एक बार दोबारा क्वेश्चन रिस करिए, क्या कहना चाह रहे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस बिल एंड मास्टर बिल? तो शायद ये थोड़ा सा ऊपर का लेवल है, मुझे लग रहा है। कस्टम के अंदर की बातें हैं क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ चीज़ों को। नहीं, मैं बीएल के बारे में से पूछ रहा हूँ। मुझे थोड़ा डिटेल्स में जानना है मास्टर बिल और हाउस बिल क्या होता है। आपने दिखाया ना बिल ऑफ लेडिंग थोड़ी देर पहले, कहाँ? जो डॉक्यूमेंटेशन है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के एक लिए चाहिए होता एक है। मिनट रुकिए, मैं अपनी पीपीटी पे चलता हूँ एक बार थोड़ा सा। इस पे डॉक्यूमेंट पे आपको डिस्प्ले हो रहा है हमारा। हाँ सर, ये देखिए लिखा हुआ है बिल ऑफ ट्रेडिंग। शिपिंग लाइन डॉक्यूमेंट होता है जो शिपिंग लाइन इशू करता है, ये जो तीसरा नंबर ओनरशिप शिपिंग डॉक्यूमेंट बिल। होता है। शिपिंग बिल की बात कर रहे हैं? ये चीज। शिपिंग बिल मैं समझाता हूँ शिपिंग बिल क्या है। शिपिंग बिल इंडिया कस्टम का डॉक्यूमेंट है। ये डिफाइन करता है कि आपका मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है। ओके। शिपिंग बिल का मतलब होता है कि यहाँ से जिस बॉर्डर से जिस भी पोर्ट से आपका मटेरियल क्रॉस होता है उसको शिपिंग बिल बोलते हैं। शिपिंग बिल आपको डायरेक्ट आईसी गेट से वो जनरेट होता है, गवर्नमेंट के साइड जनरेट होता है वो आपके। अगर आप जो आईसी गेट का अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाए होंगे तो उस पर जो मेल आईडी पड़ती है आपकी, जब आपका मटेरियल एक्सपोर्ट हो जाता है वो डायरेक्टली आपके मेल आईडी पे रिसीव होता है। आपका वो सारा डिटेल्स उसमें होता है जो आपके इनवाइस में होता है, और किस गाड़ी से मटेरियल अंदर जा रहा है, किस पोर्ट से जा रहा है, किस सीएचए ने मटेरियल पास कराया है, उसका भी जिक्र उसमें होता है। ओके। और यही शिपिंग बिल आप बैंक में दिखा के अपना जीएसटी रिफंड वगैरह भी करा सकते हैं। शिपिंग बिल ही होता है कस्टम पोर्ट का क्लियरेंस हुआ है कि नहीं, ये डिफाइन करता है शिपिंग बिल। दिस इज ए शिपिंग बिल। तो ये दो तरह का होता है, एक मास्टर बिल होता है और एक हाउस बिल भी होता है।
मास्टर डील में भी मुझे तो लगता है कि वो कस्टम के अंदर जो ये उनके अधिकारी होते हैं वो डायरेक्ट डील करते होंगे, मे भी ये हो सकता है, जबकि हम लोग सीएचए से डील करते हैं। तो मुझे सीएचए के बारे में हम्म। ज़्यादा आइडिया है, कस्टम हाउस एजेंट के बारे में। मास्टर डील में भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट जो उसके अंदर जो अधिकारी वगैरह होते हैं उनसे डील होता होगा। ओके मास्टर डील के बारे में मुझे वैसे आइडिया ओके नहीं है, क्योंकि हम लोग मास्टर डील नहीं करते। ओके 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 सर, थैंक Yes. यू। ओके। Thank you so much for your question. Moving ahead. गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। इंजीनियरिंग कंपनी से बिलोंग करते हैं। यस तो सर। वहाँ पे सपोज कुछ इक्विपमेंट है जो रिपेयरिंग के लिए बाहर भेजना होता है, तो करेक्ट। डिलीवरी चलन पे भेज नहीं सकते, तो उसके जी लिए अलग से कुछ रिटर्नेबल चलन ऐसी कुछ प्रोविज़न रहती है। तो करेक्ट। उसके रिलेटेड वो क्या होती है, क्या इंटरलिंकेज रहता है, जस्ट वो। हाँ हमें बताओ, जैसे आप कोई मटेरियल भूटान भेज रहे हैं और वो मटेरियल रिटर्नेबल है, कि जी मटेरियल काम करके हमारा वापस आएगा, करेक्ट, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस सर। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, आपका जो इनवाइस जनरेट होता है उस पे स्पष्ट शब्दों में नोट लिखा होता है, ये मटेरियल रिपेरेबल के लिए जा रहा है, वहाँ पे ये रिटर्न होके आएगा। ठीक है, कस्टम उसी माध्यम पे मटेरियल इंडिया एक्सपोर्ट करती है, नेपाल में जाता है या भूटान में जो भी हो। फिर जब वहाँ से आने लगता है तो उसका जो कस्टम क्लियरेंस का डॉक्यूमेंट होता है वो कस्टम के पास ही रहता है। ओके वो कस्टम उसको दोबारा से रिटर्न करने का प्रोसेस करती है। सेम प्रोसेस जैसे अंदर जाने का है, उस सेम प्रोसेस जो इम्पोर्ट का भी होता है, इम्पोर्ट करके मटेरियल आप इंडिया में ला सकते हैं, ओके। लेकिन वो आपको अपने बिल पे मेंशन करना होगा। तो इसके लिए कुछ 57F4 चलन वगैरह रहता है या कुछ अलग सिस्टम? नहीं, एज जो आप इनवाइस बना रहे हैं सेम बनाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा उसमें। मटेरियल ओके जाता है, नो डाउट मटेरियल जाता है नेपाल में, मशीन वगैरह जाती हैं काम करके, फिर जो वापस आती हैं, होता है। ओके, अंडरस्टूड। थैंक यू सर। आपको इनवाइस पे नोट डाउन करना पड़ेगा कि ये मटेरियल से जा रहा है हमारा, इतने दिन बाद ये मटेरियल फिर हमारा काम करके वापस आएगा, वो आ सकता है। थैंक यू सर, अंडरस्टूड। ओके। So thank you so much, Mr. Ravi. यस। I can see बहुत सारे questions है, right? हम्म। And based on that हम और एक दो सवाल ले सकते हैं डेफिनेटली, करेक्ट। बट मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इंस्टेड डायरेक्टली मिस्टर रवि से कनेक्ट कीजिए, राइट, उनके लिंक्डइन के थ्रू। हमने ऑलरेडी उनका लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दिया था चैट बॉक्स में, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो मिस्टर रवि से, ठीक है, सो दैट आप उनसे पर्सनली सवाल पूछ सकते हो, एंड एज अ क्लासमेट एज वेल आपके पास उनके डिटेल्स रहेंगे, सो दैट आप और अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो उनसे, राइट। सो एक और बार मैंने उनका लिंक्डइन प्रोफाइल डाल दिया है आपके रेफरेंस के लिए। हम एक दो सवाल और लेंगे, बट इन द मीन वाइल, बिकॉज मिस्टर रवि हैज डिलीवर्ड सच अ एक्सीलेंट, आज उन्होंने हमें काफी ऐसी चीजें बताई जिसके बारे में लेट्स से मैं पर्सनली भी इतनी अवेयर नहीं थी, फॉर दैट मैटर एज अ लर्नर स्पीकर, राइट। सो समवन हु इज नॉट अ प्रोफेशनल स्पीकर, बट एट द सेम टाइम उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली ये सेशन डिलीवर किया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी मिस्टर रवि को। ओके मैम, थैंक एंड एज अ यू। gesture, I would like to present a small gift from our end, that is a certificate. Satvik, can we please have the certificate on the screen? In the meanwhile, मैं सबको ये भी बताना चाहूंगी, क्या होता है बहुत बार हम प्रोफेशनल स्पीकर नहीं होते, बट like I said, Mr. Ravi, he decided to explore, he decided to take this opportunity, राइट, और ये अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करते हुए उन्होंने अपना नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंस जितना उनसे हो सके और जितना ब्यूटीफुली उन्होंने किया है, ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय है, राइट।
We really appreciate it, Mr. Ravi. I can see in the chat box a lot of learners are also thanking you, आपके classmates, right? और इन्हीं का इंस्पिरेशन लेके मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि आप भी आइए एज अ स्पीकर. You also share your knowledge and wisdom just like Mr. Ravi did, right? It is a good opportunity for you all. And on that note, as a gesture and on thanking you, we would like to present you the certificate. Yes. So this is a very beautifully delivered session, I will say. And this is very well deserved certificate. Usually sessions में ऐसे भी होता है कि learners सिर्फ सुनते हैं और स्पीकर सिर्फ शेयर करते हैं, बट आज का सेशन काफी फ्रूटफुल रहा. सबने काफी सवाल पूछे और मिस्टर रवि ने काफी सारे जवाब ऑनेस्टली दिए, राइट? उनके पास जो भी नॉलेज था वो उन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन हमारे साथ शेयर करा है. And he absolutely deserves all the recognition that he is getting from today's session. So thank you so much, Mr. Ravi. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन. Yes. आप लोगों को सेशन काफी एंजॉयमेंट रहा होगा, मुझे ऐसा आशा है. Yes. काफी लोगों ने चैट बॉक्स में भी लिखा है कि काफी डीप नॉलेज हमें आज मिला है, राइट? नहीं, हमने ये पहला सेशन एंड आई एम रखा प्रीटी है श्योर कि और आपके क्लासमेट्स. मैंने ये सेशन जी. फर्स्ट टाइम रखा हुआ है और ये मैंने एकदम डीपली शुरू किया है, नीचे से जो ग्राउंड से शुरू होता है. हम आगे चल के अभी सारे डिपार्टमेंट वाइज हम सेशन करेंगे आपसे. लॉजिस्टिक में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग जो सेशन हमारा लीजिए, कवर करिए. हम आपको हर एक डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे, कैसे क्या होता है, कैसे कहाँ पे किस तरीके से डेटा जाती हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका क्या रोल होता है. इसमें सीसीडी आता है, क्लेम आता है, ऑडिट आता है, स्ट्रेटगी जाती है. आईटी में मैं हूँ, लेकिन आईटी का हमने कोई रोल आज यहाँ पे आपको नहीं बताया है. हमने सिर्फ एज ऑपरेशनल बैकग्राउंड जो होता है, डीप से शुरू होता है, मैंने वो बताया है. मैं आईटी के बारे में भी आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, कैसे कंट्रोल किया जाता है चीज़ों को, कैसे चीज़ों को हम रोकते हैं गलत ना होने से. यस, एब्सोल्युटली. और ये सारी इंफॉर्मेशन काफी रॉ तरीके से हमारे पास आई है, ग्राउंड लेवल से हमें इन्होंने समझाया है, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है, राइट गाइस? एंड दिस इज हाउ इट शुड बी, राइट? सिनर्जी स्पेयर सेशन इज ऑल अबाउट कैसे हम हमारा नॉलेज और विजडम हमारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, जो कि आज बहुत ही ब्यूटीफुली मिस्टर रवि ने प्रूव किया है दैट दिस कम्युनिटी इज ऑल अबाउट यू नो एक्सपीरियंसिंग ईच अदर्स विजडम थ्रू ईच अदर्स लेंस. सो थैंक यू सो मच. पीपीटी आपके साथ शेयर की जाएंगी डेफिनेटली. मैंने मिस्टर रवि का लिंक्डइन आईडी डाल दिया था चैट बॉक्स में, लाइक आई सेड अर्लियर, राइट? डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए, बात कीजिए आपके क्लासमेट से और जानिए, राइट? सो दैट अगले और सेशंस हम और फ्रूटफुली ब्यूटीफुली डिलीवर कर पाए. सो थैंक यू सो मच. एंड ऑन दिस नोट I would like to conclude today's session. I hope that जो भी इंटरेस्टेड हो, जो भी मिस्टर रवि से इंस्पायर हो रहा है, जो भी अपना नॉलेज और विजडम शेयर करना चाह रहा है, आपने फॉर्म भर दिया होगा for being a speaker. And for those who just want to come and gain knowledge and wisdom, we always welcome you, right? So thank you so much. Thank you so much, Mr. Ravi. And PPT आपको शेयर की जाएगी. Those who have filled the attendance form, definitely you will get the PPT. Okay? Yes. Okay, so thank you so much. Have a nice day. Bye-bye. Take care, everyone. Thank you, Mr. Ravi. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन. Thank you. Bye-bye.